Okay, so let's start with next chapter, that is waves and sound. Few things that I'm expecting from your side that you should know. You should know all the equations of simple harmonic progressive wave. SHM simple harmonic progressive wave के सारे इक्वेशन पता होना चाहिए. What is simple harmonic progressive wave? हमारे पास एक स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग को मैंने वाइब्रेट किया तो इट विल मेक अप अ वेव. और ये प्रोग्रेसिव वेव है क्योंकि इट इज प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूअसली, राइट. एंड ऑफ कोर्स ईच पार्टिकल ऑफ दिस मीडियम, वायर का हर एक पार्टिकल, इट इज परफॉर्मिंग SHM इन द वर्टिकल प्लेन. ओके, तो ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है. आपको सारे इक्वेशंस पता होने चाहिए. Around 7 to 8 equations are there. So for a wave traveling along positive x, it is a sine of omega t minus kx, something like this. ये पहला इक्वेशन. This is simple harmonic progressive wave traveling along positive x. इसी को आप लिख सकते हो a sine of omega is 2 pi by time period minus this is 2 pi by lambda. k 2 pi by lambda होता है, पता होना चाहिए. दूसरा हो गया, इसको भी आप लिख सकते हो a sin of 2 pi outside t by t minus x by lambda. This is third equation. और you know v is equal to n lambda होता है. तो पहले मैं फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर लेता हूँ. 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, तो nt माइनस x by lambda ये एक हो गया. अब ऐसा है कि यहाँ पे मैं n को भी कॉमन निकाल सकता हूँ. मैंने n को कॉमन निकाल लिया. सेकेंड टर्म में तो n था नहीं, तो n एडजस्ट करना पड़ गया. ये एक इक्वेशन है. a sine of 2 pi n, 2 pi n is omega, t minus x upon n lambda is v. ये एक इक्वेशन है. So there are so many forms of simple harmonic progressive wave. ये this is a wave traveling along positive x. नेगेटिव के लिए सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस 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 एंड प्लस. Good. So we will use one of these as and when needed. I am not going to keep it here now. Then you should know साउंड पे जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए what factors sound depends on. velocity of sound किस पे डिपेंड करता है? It depends on some modulus, if you know. वो हम देखेंगे बाद में. अंडर रूट ऑफ समथिंग बाय समथिंग ऐसा आता है, that we will see. Then velocity of transverse wave on a stretched string, under root of t by mass per unit length, linear density. Okay, that we will see. Doppler effect is the thing that you will need the most. Doppler effect का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पूरा स्केलेटन के साथ बताया था कि स्केलेटन याद रखो. मतलब मैंने आपको ये बताया था. पहले तो डॉपलर इफेक्ट क्या है मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ फॉर दोज हु डोंट नो. इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म. ट्रेन इज अप्रोचिंग यू. तो उसका जो साउंड का इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे हमें ज्यादा सुनाई देता है. फिर जैसे ही वो ट्रेन क्रॉस हो गया, फिर वही साउंड इंटेंसिटी, लाउडनेस कम हो जाता है. तो ट्रेन के ड्राइवर ने जानबूझ के साउंड का इंटेंसिटी बढ़ाया नहीं था क्योंकि उसको हमको परेशान करना था, वैसा नहीं था. So it was because of an effect called as Doppler effect. So the frequency of sound emitted by a source of sound. मान लो मेरे पास स्पीकर है, it is emitting some sound. इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, उसको मैं डिनोट करूंगा n से. दिस इज emitted frequency, original, real frequency, actual frequency. Okay, right? When it is at rest, of course. So when you are not moving, when this speaker is not moving, you will hear n. But when either you are moving towards or away, and this sound source is moving towards or away, you don't really hear exactly n. आपको कुछ और ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा. दैट इज apparent frequency. Apparent because as it appears to the listener. अब डिपेंड करता है कि इमिटेड फ्रीक्वेंसी n ये apparent से कम होगा या ज्यादा होगा. ये डिपेंड करता है ऑन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, लिसनर एंड सोर्स.
तो दो ही केस होते हैं, एक तो n लेस देन na, दूसरा n ग्रेटर देन na। मैं इसको उल्टा लिखूंगा क्योंकि दैट इज व्हाट यू वांट। apparent frequency is either greater than actual or it is less than actual। we need to focus on ratio। हमें हमारा मतलब है रेशियो से, either the ratio is greater than 1 or the ratio is less than 1, because this will make your life easy in the sense, I mean physics easy for you। okay, sounds Doppler effect। और इसका जनरल स्केलेटन मतलब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला आई एम सेइंग, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v एंड v समथिंग इनटू रियल फ्रीक्वेंसी। v ऑब्जर्वर, यहां पे सोर्स, प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस पे ध्यान मत दो, ऐसा एक स्ट्रक्चर है, इतना याद रखो। तो अब क्या होगा, ये एक जनरल स्ट्रक्चर याद रखो फॉर्मूला का। और क्या याद रखना है, और ये समझना है कि जब जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर डिक्रीजेस, apparent frequency is greater than actual। जैसे अभी बताया मैंने, ट्रेन का हॉर्न शुरू था और ट्रेन आपके पास आ रहा था, तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई दी ना, यू हियर इट लाउडर। तो एन ए apparent frequency is greater than emitted, this is for reducing distance, मतलब distance is reducing between listener and source। और ये जो केस है ये फॉर इंक्रीजिंग डिस्टेंस है। बस इतना ही समझ लिया तो बहुत हो गया। क्यों, अब एक एक करके केस लेते हैं। वी विल टेक अराउंड 6 cases and 2 I will take if question appears on it। तो केस नंबर 1, स्टेशनरी लिसनर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, ट्रेन अप्रोच कर रहा है। स्टेशनरी लिसनर मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0 एंड सोर्स इज सम वेलोसिटी वैल्यू। तो ये जो जनरल स्ट्रक्चर लिखा है आपने, उसमें न्यूमरेटर में तो v00 आएगा, vs n, मैं n को यहां नहीं, मैं n को यहां लिखूंगा। एज आई टोल्ड यू, जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर कम होता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज्यादा होता है, मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। एन ए अपॉन एन ग्रेटर देन 1 होने के लिए ये नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 होगा। गलती से प्लस लिख दिया तो यूर टॉकिंग अबाउट ट्रेन गोइंग अवे फ्रॉम यू। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर, ऐसा है वो। देन केस 2, अब केस 2 ऐसा भी हो सकता है दैट ये अभी होता है ना, किसी की शादी है, डीजे बज रहा है, तो जाना है वहां पे, डीजे वाला तो वहीं पे रुका था, सो सोर्स इज स्टेशनरी and we, because we have so much of time to waste, we would want to go there and check out what is happening। again distance is becoming less, distance कम होगा मतलब रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। रेशियो ग्रेटर देन 1 होने के लिए वापस से स्टोरी वही है। अभी देखो नीचे का जो vs था वो तो 0 हो गया, ऊपर का v0 तो 0 हुआ नहीं। न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, so that the ratio is greater than 1, तो प्लस, करेक्ट। ये माइनस प्लस प्लस माइनस क्या लिखते हैं बुक में, नेवर अंडरस्टैंड, क्या तो लिखते हैं, आई डोंट नो, आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस नोटेशन, अंडरस्टूड बट नॉट रिमेम्बर्ड टू बी प्रिसाइज। एनीवेज, सो अगला केस ऐसा है कि both source and the listener moving towards each other, so in any case यहाँ पे डिस्टेंस तो कम हो ही रहा है, मतलब यहाँ पे भी na by n should be greater than 1। for this to be greater than 1, look at this structure,
ये जो जनरल स्ट्रक्चर था फॉर्मूला का, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस. देन व्हाट एल्स यू विल नीड. ओके, दोस्त दोस्त ना रहा, झगड़ा हो गया, वो चला इधर, और यहाँ पे जो दूसरा था, अभी ये ऐसा है कि फिर थोड़ा कंफ्यूजन है. एक दोस्त की आदत है बोलते रहने की, दूसरा बोलेगा आई एम लिस्टनर, आई डोंट केयर व्हाट यू आर सेइंग. ओके, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब रेशो कम हो रहा है. ओके, तो इस केस में apparent frequency is less than actual frequency, तो रेशो इज लेस देन 1, तो यहाँ पे ऊपर माइनस, नीचे प्लस. 4 केसेस हो गए, राइट. दिस 4 केसेस आर देयर. और भी केसेस हैं, नॉट इक्वल, देयर आर अदर केसेस. ये हमने यू सी डिस्टेंस रिड्यूसिंग के 3 केस लिए, डिस्टेंस इंक्रीजिंग का एक ही केस लिया. तो वो कौन डिस्कस करेगा? यू कैन हैव ऑब्जर्वर स्टेशनरी बट सोर्स मूविंग अवे. स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग अवे. तो यहां पे भी तो डिस्टेंस बढ़ रहा है. ओके, ऑब्जर्वर स्टेशनरी था, सोर्स मूविंग अवे था, तो नीचे प्लस आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो रेशियो छोटा होगा 1 से. लास्ट केस, ऑब्जर्वर going away but source is stationary. Okay, so here again you will have नीचे सिर्फ v, ऊपर numerator should be smaller मतलब माइनस. गुड. तो ये ऐसा याद रखते हो. दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेम्बर सच फॉर्मूलाज. ऑलराइट, सो इफ यू नो दिस, अभी पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि उसके साथ रिलेटेड है, but in any case it was important for us to discuss Doppler effect. A uniform rope of length L and mass m1 hangs vertically from a rigid support. You have a rope of length L. This is a rigid support. You have a rope of length L and mass m1. There is a mass m1 over here. It hangs vertically from a rigid support, something like this. Okay, a block of mass m2 is attached to the free end of rope. थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब मेरा एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा. इसका लेंथ l है, रोप का मास m1 है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, और जो नीचे जो ब्लॉक है उसका मास m2 है, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. ओके, a transverse pulse, मतलब transverse wave of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top is lambda 2. The ratio of lambda 1 by lambda 2 is. Now I will just increase the size of this diagram so as to give a better presentation. ऐसा है, ये जो स्ट्रिंग है, नॉर्मली हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस कंसिडर करते हैं नॉर्मली, बट दिस इज अ स्ट्रिंग विच हैज इट्स ओन मास m1. अब उससे क्या होगा, तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन. तो ऐसा है, अगर इस स्ट्रिंग का खुद का मास नहीं होता, तो इन दैट केस जो भी वेव हम लोअर एंड पे प्रोड्यूस करते हैं उसका वेवलेंथ कांस्टेंट रहता जब तक वो ऊपर पहुंचता नहीं तब तक. बट बिकॉज इसका रोप का खुद का मास है, तो वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड हियर इज नॉट सेम, इट इज चेंजिंग.
मे बी इट इज डिक्रीजिंग, मे बी इट इज इंक्रीजिंग, वो तो हमको रेशियो निकालने के बाद समझ में आए। तो मे बी इट इज लाइक दिस। तो एट द अपर एंड वेवलेंथ इज लैम्डा 2, at the lower end wavelength is lambda 1. What is the ratio of lambda 2 by lambda 1? So to solve this question you need to know some basics. आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. You know what are the formulas. सबसे पहले वेवलेंथ को कनेक्ट करना है. वेवलेंथ को कनेक्ट कैसे करोगे? मैंने इसलिए बताया था कि what you should know is velocity of wave on a stretched string under root of t by mass per unit length. Good. T is tension. How do you find out tension? अभी तक तो पता है ना mg. This is what I was expecting. Yes. पर वो कौन सा केस था? नहीं, you're right. But वो कौन सा केस था? जब massless string का केस था. That is why you need to read question very properly. एक नॉर्मल सी एक छोटी सी गलती भी होती है. ऑफ कोर्स दो इक्वेशन मिलेंगे आपको. यू विल गेट m1g, यू विल गेट m2g, वन टेंशन एंड m1 प्लस m2g. सिर्फ m1 प्लस m2g कहां पे और m2g कहां पे, दैट इज इंपॉर्टेंट. where at lower point what is tension T1 and at uppermost point what is tension T2. This is what you need to understand. यहाँ पे गलती हुई तो ऑप्शंस जो आपको दिए हैं they have not given very good options because I would prefer to write down. हाँ दिया है ना नीचे m2 m1. okay anyways तो मैं जो भी करेक्ट आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल दे देता है. Anyways, so now first thing that you need to know here is हमको velocity is equal to n lambda ये पता है. तो lambda is equal to v by n ये पता है. हमको ये पता है this is root of t by mass per unit length. This is not mass. I will better denote it by something else. इसको आप कुछ भी और बोल दो. mass per unit length है ये. I will call this as linear density linear rho L. क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ में कितना मास है वो है. इन एनी केस आई डोंट नीड दैट क्योंकि एक ही वायर है तो डजंट मैटर. तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन. आपको पूछा है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का रेशियो. तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू T2 बाय T1 का रूट. बस अब प्रॉब्लम इतना सा है कि T2 और T1 ये होती है गड़बड़. गड़बड़ ये होती है. अब देखो कि लोअर एंड पे दैट इज वेयर एट लोअर एंड उस वायर जहां खत्म हुई उसके नीचे m2 है सिर्फ. तो लोअर एंड पे आपके पास आएगा m2g. दिस इज वेयर यू नीड टू पे अटेंशन क्योंकि जो वायर का लोअर एंड है उसके नीचे कोई मास नहीं है. वायर का मास नहीं है. उसके नीचे ब्लॉक का मास है. मतलब टेंशन एट लोअर एंड इज m2g. लेकिन अपर एंड के नीचे m1 वायर का मास, उसके नीचे m2 ब्लॉक का मास. तो दिस इज m1 प्लस m2g. तो अब you know that finally you will be getting lambda 2 by lambda 1 is under root of T2 by T1. मतलब आपको पता है it will be m1 plus m2 by m2 का रूट. तो this is equal to क्योंकि g तो कैंसिल हो जाएगा under root of m1 plus m2 by m2. Option number B. Okay, I would better prefer writing one option as m2 like this. क्योंकि टेंशन अगर आपने गलत कैलकुलेट किया तो फिर then it will create confusion. So this is how you are supposed to solve. Next question. The length of wire between two ends of sonometer is 100 centimeter. You know
you have a sonometer box, जिसको आप resonance box बोलते हो. आप you must have performed experiment on this. If you are, I mean, if your batch is not 2020, okay, तो ये एक सोनोमीटर बॉक्स होता है. इसके ऊपर दो नाइफ लगा के रखते हो आप. ओके, सो यू हैव two knives mounted on this. Knife 1, triangular shaped knife, knife 2, something like this. Okay, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट होता है. You have a support here, जिसपे आप रस्सी बांधते हो. String you tie here, और फिर यहाँ से ऐसा स्ट्रिंग जाएगा. फिर यहाँ पे पुली होगा और फिर नीचे एक वेट होगा. सो आई एम नॉट शोइंग दैट. फिर आप ट्यूनिंग फोर्क लगा के you send sound waves inside. अंदर साउंड वेव जाएगा. compression and rarefaction. if it happens that जो साउंड वेव हमने जनरेट किया है उसका फ्रीक्वेंसी और बॉक्स का नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गया तो बॉक्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इसके ऊपर जो आप एक पेपर का पीस रखते हो वो नीचे गिर जाता है. एंड यू से दैट रेजोनेंस. ओके, resonance is when external frequency and natural frequency of the box matches, that then the box starts vibrating with maximum amplitude. इसलिए सोल्जर्स को ब्रिज पे मार्च करने का, मार्च मतलब वो लेफ्ट राइट वो मना होता है. क्यों? क्योंकि अगर उनके मार्चिंग का फ्रीक्वेंसी ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया, ब्रिज स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड ब्रिज में कोलैप्स. ऐसा हुआ है in 1921. आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट ऐसा हुआ है. तो जब पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो दे रियलाइज्ड, oops, we forgot physics. I mean, this physics. Okay, so in any case, अब let us talk about this question. The length of the wire between two ends of sonometer is 100 centimeter. What should be the position of two bridges below the wire so that the three segments of the wire, okay, have fundamental frequencies in the ratio? तो ये जो तीन सेगमेंट हुए हैं 1, 2 and 3, क्योंकि ये नाइफ K1 है, नाइफ K2 है, तो what should be the position? पोजीशन, रेशियो नहीं पूछा है लेंथ का, पोजीशन पूछा है. ओके, तो व्हाट इज दिस पोजीशन ऑफ नाइफ? ये एक पोजीशन measured from here और ये दूसरा measured from here. Okay, right? This is what they're asking you. What should be the position of knife? Good, good. तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसीज का रेशियो दिया है. F1 is to F2 is to F3, that is 1 is to 3 is to 5. And as I told you in the last session also, last to last, frequency is inversely proportional to length. तो अब मैं आपको वो सॉल्व नहीं करके दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली लेंथ का रेशियो कैसे निकालना है बता दूंगा. L1 is to L2 is to L3 you are supposed to find out. That is of course 1 is to 1/3 is to 1/5. ये लेंथ का रेशियो है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो आपको यहाँ पे लेंथ का रेशियो मिल गया. अब इससे आपको लेंथ मिल जाएगा. ऑब्वियसली यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट लेंथ. तो लेंथ you have to find out. L1 is equal to 100 upon 23 into 15. 100 is total length. Okay, ये total length होता है. 15. What is 15? What is 23? ये you have to work this out. आपको ये करना पड़ेगा. You need to know how to find out LCMs and other things. जब तक आपको नहीं पता होगा तो इट इज डिफिकल्ट. तो L2, अभी ये आपका 100 into 15/23 आया. तो L2 क्या आएगा? यू नीड टू वर्क आउट. तो L2 आपका आएगा 100/23 into 5. ओके, सिमिलरली L3 आपका आएगा 100/23 into, if I'm not wrong, 3.
ओके, इट इज इनटू 3, करेक्ट। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। कैसे? इजी इजी इजी। लेंथ L1, मैं इसको थोड़ा नाइफ को शिफ्ट कर देता हूं। गुड। लेंथ L1 कितना मिल गया? 1500 बाय 23। 1500 बाय 23, मतलब एटलीस्ट आपको पहले नाइफ का पोजीशन तो मिल गया, क्योंकि लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो? मैंने बोला कि मुझे मुझे इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए, तो आप जब स्केल लगाओगे तो स्केल का 0 यहाँ सेट करोगे। हाँ, तो फिर स्केल का 0 यहाँ पे रिजिड सपोर्ट पे सेट करके रखा है, समान। तो पहला ही लेंथ जब आपको 1500 बाय 23 मिल रहा है, मतलब फॉर श्योर नाइफ 1 इज एट 1500 बाय 23। ओके, गुड, राइट। तो एटलीस्ट ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगला कैसे सॉल्व करोगे? नहीं नहीं, उससे बड़ा ऐसा तो तुक्का नहीं चलेगा यहाँ पे। यू कैनॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग, यू कैनॉट डू दैट थिंग। ओके, मान लेते हैं। सी, ऑफ कोर्स what you said is correct, keeping in mind shortcut trick, क्योंकि ये सही है कि जब पहला ही नाइफ 1500 बाय 23 पे आया तो दूसरा नाइफ उसके पीछे ही जाएगा, मतलब 2000 बाय 23। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राइट। गुड, बट फॉर योर एक्सरसाइज यू मस्ट वर्क आउट कि 2000 बाय 23 आया कैसे। 1500 बाय 23 प्लस 500 बाय 23। क्यों? क्योंकि L1 और L2 सेकेंड नाइफ कहां पे है? L1 प्लस L2, राइट। हाँ, तो ऐसा फाइंड करना है वो। गुड, तो खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट्स, जो फिक्स पॉइंट है जिसमें स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके रखा है, उसका डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर है। इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 420 hertz, resonant frequencies of 420 hertz and 315 hertz. There are no other resonant frequencies. इन दो resonant frequency को छोड़ के तीसरा frequency है ही नहीं। ओके, बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में। ओके, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो आपको लोवेस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द स्ट्रिंग पूछा है। इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स आपको याद होगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। आपके पास जब एक स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है तो इसके मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक ही लूप बनता है। फर्स्ट ओवरटोन 2 लूप, मतलब सेकंड हार्मोनिक। थर्ड सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक 3 लूप। गुड। अब आपको जो क्वेश्चन बोला है, उन्होंने आपको बोला है कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, लेट अस से N1 विच इज 315, है ना। उसके बाद जो है वो है N2 विच इज 420। आपको चाहो तो आप उल्टा नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू कॉल 420 एज N1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इंटेंशनली सिर्फ स्विच किया है सिंबल को। क्यों? क्योंकि 315 छोटा है। ओके, सो मैं मान लेता हूं, इफ यू रिमेंबर, मैंने इसलिए बताया था स्ट्रेच स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n है तो नेक्स्ट इज 2n, नेक्स्ट इज 3n, नेक्स्ट इज 4n, नेक्स्ट इज 5n, नेक्स्ट इज 6n। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अगर फंडामेंटल 10 है तो उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 एंड सो ऑन सो फोर्थ। करेक्ट? गुड। अब 315 ये फंडामेंटल है कि नहीं मुझे नहीं पता। डू यू नो? नो, यू डोंट नो। तो फिर आप बोलोगे चलो ये कोई nth फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, nth हार्मोनिक होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं n, 2n, 3n, ये फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल। सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। इन एनी केस, थोड़ा नोटेशन को चेंज कर देते हैं।
थोड़ा सा नोटेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैन आई राइट डाउन दिस एज 1n? यस। 2n, 3n, 4n, मतलब अगर मैंने बोला कि फोर्थ हार्मोनिक, आप बोलोगे 4n। मैंने बोला फिफ्थ हार्मोनिक, आप बोलोगे व्हाट इज पीथ हार्मोनिक? pn, एग्जैक्टली, राइट, करेक्ट। अब ये जो 315 है, हमको पता है कि ये पहला हार्मोनिक है, दूसरा है, तीसरा नहीं पता, हम बोलेंगे ये पीथ हार्मोनिक है, वेयर n इज फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला? v अपॉन 2l। For a stretched string, fundamental frequency is v by 2l. Babare, you don't remember things. I have to revise. Okay. एक stretched string है, और as I told you, जब हमारे पास एक stretched string होता है और अगर वो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रहा होता है तो एक लूप बनता है। एक लूप का मतलब होता है दो नोड्स और एक एंटी नोड, और आपको ये पता है कि लेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। ओके, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2l, बट वेलोसिटी इज n लैम्बडा, n इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्बडा, तो v बाय 2l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज v बाय 2l। गुड, यहां तक पता होना चाहिए। अब मैं, एज आई टोल्ड यू, डोंट वरी अबाउट माई नोटेशंस। पहला फ्रीक्वेंसी f1 बोलो, n1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 315 हर्ट्ज। दूसरा फ्रीक्वेंसी, मैं पहला और दूसरा बोल रहा हूं, मतलब जो हमको दिया है उसमें पहला और दूसरा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। आई डोंट नो विच इज दिस, आई एम सेइंग दिस इज सम पीथ। और आपको पता है पीथ हार्मोनिक इज p इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप नहीं बताया। Fourth harmonic is 4 into fundamental. Fifth is, so pth is p into fundamental, but fundamental is v by, very good, correct। फिर आपको f2 मिलेगा p plus 1। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के बीच में कोई और नहीं है, मगर इसका मतलब अगर ये दूसरा है तो ये तीसरा है, ये तीसरा है तो ये चौथा है, ऊपर का p तो नीचे का p plus 1। वेरी गुड। आपको क्या पूछा है? लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको पूछा ही फंडामेंटल है। लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल ही होता है ना। हाँ, मतलब बेसिकली ये सब लिखने का यहाँ पे सिर्फ मतलब ये था कि आप P और N में कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिखा था मैंने। गुड गुड, तो इजी है ना। F2 माइनस F1 इज P plus 1N minus Pn, but F2 is 420, दिस इज 315, n कॉमन निकाल लिया, p प्लस 1 माइनस p, तो p कैंसल, तो सिर्फ n बचा, तो दोनों का डिफरेंस 105, 105, 105। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, so there's nothing here. Next question, an air column closed at one end and open at other। अब एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड का फंडामेंटल, एयर कॉलम ओपन एट बोथ एंड्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसमें कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ये पता होना चाहिए, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट today you will go and read at home, so I will take this question in the next session because I want you to know basic formulas. So we'll stop here for today.